کے رسول نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا. کتنا واجب کیا؟ ایک سا گیہوں کا یا ایک سا جو کا شعیر ہر ایک بندے پر، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اللہ کے رسول نے رمضان کے اندر ہر ایک چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت پر ایک سا گیہوں یا ایک سا جو فرض کیا ہے صدقۃ الفطر. ایک سا کی کتنے کو کہتے ہیں؟ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے. 4 مد لگ بھگ 2.5 کلو کے برابر بنتا ہے. 2.5 کلو یعنی پی کر ایک آدمی سے 2.5 کلو گیہوں یا جو یا کون بھی کھانے پینے والی اشیاء جن کو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہوں، چاہے چاول ہو چاہے مکئی ہو چاہے باجرہ ہو چاہے دال ہو چاہے جو ہو، کشمش ہو، پنیر ہو، کھجور ہو، کوئی بھی چیز جس کو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو صدقۃ الفطر میں ہم دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں. فیکس 2.5 کلو 2 کلو 500 گرام لگ بھگ 400 بنتے ہیں، لیکن تقریباً اندازاً 2.5 کلو کا نکالا جاتا ہے. 2.5 کلو فیکس ہر ایک چھوٹے اور بڑے کی طرف سے. صدقۃ الفطر واجب کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے روزے داروں کو پاک کرنے کے لیے گندی اور بیہودہ باتوں سے. رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے جو بھول چوک اور جو غلطیاں ہم سے ظاہر ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، جن غلطیوں میں ان غلطیوں سے ہم کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے. دوسری وصیت ہے وطعمۃ للمساکین، اور یہ مسکینوں کی غذا ہے. ہم جو صدقۃ الفطر نکالتے ہیں وہ غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، گویا کہ وہ ہماری طرح عید کے دن وہ بھی خوش رہے، وہ بھی ہماری طرح کھائے اور پیے. تو ان کی غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے. 2 مصلحت کو اللہ کے رسول نے بیان کیا. ایک یہ ہے کہ ہمارے جسموں کو اور ہم کو غلط اور گندی چیزوں سے پاک کرنے کے لیے، ہمارے روزے کی تطہیر کے لیے، اور دوسرا جو مسکین اور غریب ہیں ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب اور ضروری کیا ہے. تو صدقۃ الفطر کی مقدار 2.5 کلو فیکس ہر ایک چھوٹے اور بڑے کی طرف سے. آدھا سا، کچھ لوگ آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا نکالتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہے کہ 2.5 کلو فیکس نکالنا چاہیے، 2.5 کلو سے کم نہیں نکالنا چاہیے. کچھ لوگ 2.5 کلو کا آدھا نکالتے ہیں، لگ بھگ 2.25 کلو یا 1.5 کلو نکالتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. جن روایتوں کے اندر جو ہے آدھا سا کا تذکرہ آیا ہے وہ روایت ضعیف ہے. اللہ کے رسول سے ثابت ہے فیکس 2.5 کلو. کن چیزوں میں صدقۃ الفطر واجب ہے، کن چیزوں میں ہم دے سکتے ہیں، وہ میں نے ذکر کیا. جو گیہوں، جو، پنیر، کشمش، کھجور اور ان کے علاوہ اناج کی جو بھی قسم جس کو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہوں، ہر ایک چیز سے ہم صدقۃ الفطر واجب ہے. اگر کسی کی غذا گوشت ہے، جیسے کہ کچھ ملکوں میں صرف لوگوں کی زندگی گوشت پر منحصر ہوتی ہے، گوشت کھاتے ہیں وہ لوگ، تو ان کے لیے صدقۃ الفطر گوشت میں سے نکالنا ہے. کسی کے یہاں انحصار آٹے پر ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں زیادہ استعمال آٹے کا ہوتا ہے، آٹے سے بھی نکال سکتے ہیں. بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لوگ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاول کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ انڈیا میں جائیں گے تو چاول اور گیہوں دونوں مکس ہے، برابر لوگ کھاتے ہیں. تو جو بھی غذا کے طور پر جس اناج کو لوگ استعمال کرتے ہیں، ان غذا کے ذریعہ ہم صدقۃ الفطر کو نکال سکتے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے یہاں، صدقۃ الفطر کی قیمت نکالنا. لوگ اناج نہ دے کر کے صدقہ فطر کی
कीमत निकालते हैं। जैसे कि सऊदी अरब में लोगों ने फिक्स कर लिया 15 रियाल आपको देना है, वैसे अपने इंडिया पाकिस्तान में 50, 60, 100 रियाल, 100 रुपए फिक्स कर लिए होंगे। नबी से साबित है सदकातुल फित्र अनाज के जरिए निकालना। क्या हमारे नबी के जमाने में दिरहम नहीं था, दीनार नहीं थे, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था? नबी के जमाने में गल्ला भी था, पैसा भी था, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अनाज में से निकालने का हुक्म दिया है। अगर पैसे में से भी निकाला जा सकता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे में से भी निकालने का हुक्म दे सकते थे। पैसा मौजूद था उस जमाने में, उस जमाने में दिरहम दनानीर चलते थे, लेकिन आपने पैसे से निकालने का हुक्म नहीं दिया, आपने अनाज में से निकालने का हुक्म दिया। और ये मसलहत आपने फरमाया वतुअमतन लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों की ग़िज़ा है। पैसा ग़िज़ा नहीं, पैसा तो कोई चीज खरीदने के लिए, चाहे बैटरी खरीदे, चाहे आप खाने पीने की चीजें खरीदे, लेकिन जो अनाज निकालते हैं ये ग़िज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस हिकमत के लिए फर्ज किया है वो हिकमत ये है कि हम गरीबों और मोहताजों को ग़िज़ा फराहम करें, और ग़िज़ा पैसे के जरिए नहीं होती है, ग़िज़ा अनाज के जरिए है। लिहाजा अनाज के जरिए, गल्ला जात के जरिए हमें सदक़ातुल फित्र अदा करनी चाहिए। नबी की सुन्नत यही है। और अइम्मा, मशहूर अइम्मा, 3 अइम्मा का यही फतवा है, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल। और जो जमहूर अइम्मा है, मशहूर अइम्मा है, उनका मसला यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदक़ातुल फित्र अनाज के जरिए हुक्म हुआ है, लिहाजा हम अनाज और गल्ले के जरिए सदक़ातुल फित्र अदा करें, पैसे के जरिए अदा नहीं करें। लेकिन इमाम अबू हनीफा का तन्हा मसला है कि पैसे के जरिए अदा किया जा सकता है। ये शरीह है, नस के खिलाफ है। नस के अंदर मौजूद है, आपने गल्ले के जरिए साअद बिन तमर कहा है कि तमर के जरिए 1 सा, या गेहूं के जरिए 1 सा, या जौ का एक सा, हमें गल्ले के जरिए सदक़ातुल फित्र अदा करने का नबी ने हुक्म दिया। लिहाजा औला अफज़ल यही है कि हम गल्ले के जरिए सदक़ातुल फित्र अदा करें। लेकिन अगर कोई शख्स इस मुल्क के अंदर, सऊदी के अंदर है, हमारा मुल्क इंडिया और पाकिस्तान है, यहाँ रोजगार के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ से अनाज पार्सल करना मुश्किल है। यहाँ पैसे इकट्ठे करके अपने मुल्क में भेजेंगे और इसको नायब बनाएंगे या अपना हम रहनुमा बनाएंगे, उसको हम कहेंगे कि इस पैसे से अनाज खरीद करके गरीबों में तकसीम करो। पैसा यहाँ से भेजेंगे, लेकिन वहाँ अपने वकील को हुक्म करेंगे कि आप इस पैसे से अनाज खरीद करके गरीबों में तकसीम करें। लिहाजा कीमत निकालना दुरुस्त और सही नहीं है। सदक़ातुल फित्र का वक्त क्या है, ये भी बहुत अहम मसला है। मुझे कल मालूम हुआ, पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कल कि लोग 1 रमजान से सदक़ातुल फित्र जमा करना शुरू कर दिए। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि नबी की सुन्नत को हम पसे कुछ डाल देते हैं। नबी पैसे के लिए हम सुन्नत को छोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, और हदीसों से पता चलता है सदक़ातुल फित्र अदा करने का 2 वक्त है, एक अफजल वक्त है और एक जवाब का वक्त है, जायज हमारे लिए 2 वक्त है। अफजल वक्त है ईद का जब चांद नजर आ जाए, ईद का जब चांद नजर आ जाए 29 या 30 को, चांद निकलने से लेकर के, यानी सूरज के गुरूब होने के वक्त से लेकर के ईद की नमाज पढ़ने से पहले, ईदगाह जाने से पहले, ये सदक़ातुल फित्र का अफजल वक्त है, सबसे बेहतरीन वक्त। इस टाइम में हमें सदक़ातुल फित्र हमें अदा करनी चाहिए। एक जायज वक्त है, जायज है हमारे लिए सदक़ातुल फित्र निकालना, वो ये है कि ईद के दिन से 1 या 2 दिन पहले हम सदक़ातुल फित्र निकाल सकते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, इब्न उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में इस तरह से लोग 1 दिन या 2 दिन सहाबे किराम सदक़ातुल फित्र निकाला करते थे, 2 दिन से ज्यादा नहीं, जिसका तज़किरा सुनन अबू दाऊद के अंदर है। 1 दिन या 2 दिन ईद से पहले 28 या 29 को, 28 और 29 को हम लोग सदक़ातुल फित्र निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने उससे पहले सदक़ातुल फित्र निकाल दिया, उसका सदक़ातुल फित्र अदा नहीं होगा। और किसी ने ईद की नमाज के बाद सदक़ातुल फित्र अदा किया, उसका भी सदक़ातुल फित्र अदा नहीं होगा। अगर किसी ने इस तरह से गलती की हो तो अपनी गलती की इस्लाह कर ले। सदक़ातुल फित्र का टाइम मुतय्यन है, अफजल वक्त तो ईद के दिन सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर के ईदगाह जाने तक, और जायज है हमारे लिए ईद के दिन से 1 या 2 दिन पहले निकालना। उससे
फित्र पहले नहीं निकाले, इल्ला लेके किसी के पास मजबूरी आ जाए। बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, शरई मजबूरी हो तो आदमी के लिए कुछ भी जायज होता है। जैसे अगर कोई आदमी बहुत दूर दराज सहरा में है, उसके पास कोई आ नहीं सकता है, वो किसी के पास उसको पैसा भेजने में या सदक़ातुल फित्र जो है भेजने में उसे टाइम लग सकता है। अगर उसने मजबूरी और एहतियातन चंद दिन पहले निकाल दिया या उसको निकालने में कभी ताख़ीर हो गई, किसने कि उसने किसी को पाया ही नहीं या उसने किसी को जानता ही नहीं था कि इसको सदक़ातुल फित्र अदा किया जाए, अगर शरई मजबूरी हो तो ताख़ीर हो जाए या पहले अगर हो जाए तो उसमें हरज की बात नहीं है। लेकिन बगैर शरई उज़्र के पहले निकालना या ईद की नमाज के बाद निकालना, इससे हमारे सदक़ातुल फित्र कबूल नहीं किया जाएगा और उसको सदक़ातुल फित्र शुमार नहीं किया जाएगा। सदक़ातुल फित्र किस तरीके से अदा करना चाहिए? हम लोग परदेसी हैं, दूसरे मुल्क से यहाँ आए हुए हैं। अफजल तरीका ये है जो किताब व सुन्नत के दलाइल और नुसूस की रोशनी में पता चलता है, जो जिस जगह पे रह रहा हो सदक़ातुल फित्र वहीं पर अदा करे, वहीं पर अदा करे, जो जिस जगह पर रहता हो। और हर मुल्क और हर जगह पे फुकरा और मसाकीन मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि सऊदी है तो यहाँ गरीब और मिस्कीन नहीं है, यहाँ भी लोग हैं, हर जगह गरीब और मिस्कीन लोग होते हैं। अफजल तरीका ये है कि हम गरीब और मिस्कीन को ढूंढ करके उसी जगह पर दें। लेकिन अगर हम अपने आप अपने तौर पर किसी गरीब को नहीं जानते हैं, किसी मिस्कीन को नहीं जानते हैं जिसको देना चाहिए, तो किसी को हम वकील बना सकते हैं। किसी अच्छे सऊदी या किसी ऐसे आदमी अमानतदार को मुंतखब करें जो आपके सदक़ातुल फित्र को गरीब और मिस्कीन तक पहुंचा सके उस जगह पे। लेकिन अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं हो या इससे कहीं ज्यादा हमको अपनी जगह पर अपने मुल्कों में नजर आता हो कि वहां पर सदक़ातुल फित्र देना चाहिए, तो हम दो शक्लों में कर सकते हैं। या तो यहाँ पैसा इकट्ठा करके वहां भेज दें और उस पैसे का जो है गल्ला खरीद करके फीकत 2.5 किलो गरीबों में ज़कात या फित्रा का पैसा या फित्रा दे सके, ये तरीका है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम टेलीफोन और मोबाइल के जरिए हम खबर करें अपने घर वाले को कि मेरे तरफ से भी सदक़ातुल फित्र निकाल लो, ये भी जायज तरीका है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अफजल तरीका है जहाँ पे रहते हैं वहीं पर सदक़ातुल फित्र अदा करें। इसमें एक मसला ये भी है कि चंद लोगों के सदक़ातुल फित्र को जमा करके किसी एक मिस्कीन को भी दिया जा सकता है। जैसे 10 आदमी के सदक़ातुल फित्र को जमा कर लें और एक मिस्कीन को जरूरतन दिया जा सकता है। अगर कोई बहुत मिस्कीन हो, अगर उसको बहुत ज्यादा जरूरत हो तो उसको चंद आदमी का पैसा जमा करके दिया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ उसी को दे देना, बाकी को नहीं देना, उनसे जो है सरफे नजर कर देना, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जरूरतन और एहतियातन चंद लोगों का सदक़ातुल फित्र एक आदमी को दिया जा सकता है। इसी तरीके से सदक़ातुल फित्र मक़रूज़ को भी दिया जा सकता है। अगर कोई मक़रूज़ है तो उसको भी दिया जा सकता है ताकि वो अपना कर्जा अदा कर सके, मक़रूज़ को भी दिया जा सकता है। सदक़ातुल फित्र घर का जिम्मेदार आदमी घर के तमाम लोगों की तरफ से निकालेगा। अगर बाप है या अगर शौहर है तो अपनी बीवी, अपना बच्चा और अपने माँ बाप की तरफ से, अपने लड़कों लड़कियों की तरफ से वो सदक़ातुल फित्र अदा करेगा। लेकिन इत्तिफाक से हमारे पास सदक़ातुल फित्र गल्ला या अनाज या हमारी हैसियत कम है, हम घर के तमाम लोगों की तरफ से सदक़ातुल फित्र अदा नहीं कर सकते हैं, तो तरतीब कायम जरूरी है। जितना आदमी की तरफ से अदा कर सकते हैं उतने आदमी की तरफ से आप अदा करें, तरतीब जरूरी है। पहले अपनी तरफ से, जो आदमी साहिब इस्तिताअत है, ताकत रखता है, पहले अपनी तरफ से सदक़ातुल फित्र अदा करेगा। फिर उसके बाद उसकी बीवी का नंबर आता, अपनी बीवी की तरफ से वो सदक़ातुल फित्र अदा करेगा। तीसरे नंबर पर अपने आल औलाद की तरफ से सदक़ातुल फित्र अदा करेगा। चौथे नंबर पर अपने माँ बाप की तरफ से। माँ बाप में सबसे पहले माँ का नंबर आता है। अगर माँ पे खत्म हो जाता है, एक आदमी का इख्तियार करना पड़ेगा तो माँ को चुने, माँ की तरफ से दें, फिर उसके बाद बाप की तरफ से आप सदक़ातुल फित्र दें, अगर कम पड़ जाता हो तो। लेकिन अगर नहीं कम पड़ता है तो साहिब इस्तिताअत घर का जिम्मेदार आदमी पूरे घर की तरफ से सदक़ातुल फित्र अदा करेगा। एक सूरत यह बनती है किसी के ऊपर कर्ज है,
اور وہ صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، اور قرض میں اس کو ٹائم ہے، بعد میں بھی قرض ادا کر سکتا ہے، تو پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے، اس لیے کہ اس کا ٹائم متعین ہے، اپنے ٹائم پر دینا ہے۔ اگر قرض ضروری ہے، قرض کو ابھی چکانا ہے، تو پہلے قرض کی ادائیگی کر لے، قرض کی ادائیگی کے بعد اگر قبضہ بچتا ہے پھر وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ لیکن قرض میں اگر تاخیر ہو سکتی ہے، بعد میں دیا جا سکتا ہے، عید کے بعد، شوال کے بعد، رمضان کے بعد دیا جا سکتا ہے، تو پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اس لیے کہ صدقۃ الفطر کی مصلحت ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، یہ بدنی زکات ہے، بدن کو پاک کرنا ہوتا ہے، اور پھر مسکینوں کی یہ غذا ہے، اس لیے اس کو نکالنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہو اور اس کے 120 دن ہو چکے ہوں تو احتیاطاً نفلی طور پر بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ عید سے پہلے پیدا ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے تو پھر اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں پیدا ہوتا ہے یا کسی کی شادی سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، پھر اس کی بیوی کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا، صرف اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے احکام ہیں۔ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں، جو سنت ہے اس میں ثواب ہے، چاہے وہ سنت کبھی کیوں نہ ہو، لیکن سنت اگر نبی کی سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہم اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمارے لیے ثواب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صدقۃ الفطر ادا کر کے ہمیں بدن کی تمام آلائشوں سے پاک کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔